Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. If you have not registered for our literature festival, Sathology International Literature Festival in San Diego, please sign up. Please tell your friends to sign up. We work on promoting Vedic thought process in the entire world through facts, logical arguments, and references. आपने अगर सतोलॉजी इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए साइन अप नहीं किया है तो जरूर करिए, हमारे साथ जुड़िए, हम लोगों को स्पॉन्सर करिए. एसोसिएट योर प्रोडक्ट्स विद सतोलॉजी. सतोलॉजी इज गोइंग टू बिकम द वर्ल्ड वाइड नेम फॉर ट्रूथ. वी आर ट्रूथ सीकर्स. हम सत्य की खोज में हैं. सत्य का विज्ञान या सत्य की पढ़ाई. वी आर सर्चिंग फॉर ट्रूथ एंड वी आर लुकिंग फॉर ट्रूथ. सत्यमेव जयते. ट्रूथ ऑलवेज विंस. तो इसलिए जुड़िए सतोलॉजी के साथ और मिथोलॉजी को डिबंक करिए विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स. रीड माय बुक्स. और मेरा नया बुक आएगा, यू विल ब्लो अवे योर माइंड. चलिए आज की स्टोरी में बिगिन करते हैं. टॉपिक तो आपने देख ही लिया है, टॉपिक कौन सा है. एंड टुडे स्टोरी बिगिंस विद इंटरनेशनल खान मार्केट गैंग. तो अगर आपको कुछ समझना है तो you have to go back in history. If you want to understand something in detail, you have to go back in history. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? And today, the beauty of the internet is you can search details on your own. आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं और आप वहां से पता लगा सकते हैं कि क्या सत्य है. तो आजकल to run after truth is a beautiful thing actually. Everyone wants truth. सबको सच चाहिए, लेकिन किसी को सच हजम नहीं होता. No one can digest truth. Like if I tell people, when the one question which I get asked in USA all the time is, if I tell the truth, they say, why don't you go back to your own country? That's the question I get asked. Very racist question. Actually, this question should be form part of racial bias in North America. If I ask something, this is the first question I get asked before anything else. And my answer to them is, why don't you go back to where you came from? From the USA. It's a land of immigrants, but before that, settlers wiped out native religions and native cultures. That's the fact. And my answer to Ann Coulter is, I don't know how to pronounce her name. Ann Coulter, when she spoke to Vivek Ramaswamy, my answer to her is, you have no idea about history. You don't know how settlers destroyed the Native American religions and cultures, and then a democracy was installed when they were almost wiped out. And when those elections happened, you did not give them the right to vote. They had no representation in the initial Constitution Committee of United States of America. And Coulter must go back to the schools and find out the history herself. She doesn't know anything about this country. It's called White Anglo-Saxons Protestants. It's not their country. And neither the founders of USA could be said anything they have said. America is not a Judeo-Christian background country. America is a Native American country. American Constitution guarantees religious freedom, and anybody born in the United States, including Hindu Vivek Ramaswamy, a Native American, can be the president of this country. If Ann Coulter has a problem, she can choose any other country if she wants to choose. तो चलिए, ये मैसेज था मेरा. अब मैं आपको हिंदी में बताता हूं कि इस देश का इतिहास क्या है, कौन भारत को अपोज करता है. उस पे मेरा पिछला शो जाके देखिए. वॉच माय प्रीवियस शो ऑन
on why and the Anglo-Saxon जो कम्युनिटी है किस तरह उसने पूरे देश दुनिया पे कब्जा किया और वही लोग भारत को अपोज कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. We'll go back into that detail with facts. And I think this video can be used by Indian Foreign Ministry to free all the British colonies, all the French colonies, all the Spanish and Portuguese colonies from the colonization imposed on account of gold, glory, and God. Gold is the first priority, God is the Catholic Church or Anglo-Saxon Church, and glory is the glory for the Catholic or Anglo-Saxon Church. So when you speak truth, Dharma protects you. Jagannath Ji is there to protect you. Jagannath Ji's powers are all over the planet. Chaliye, let's begin. So I will show you a map which you have seen many times. So this is that time when I was showing, somehow screen was not changing, and I'm sorry for that. And so this is the home of the Anglo-Saxons. Actually the Saxons जो आते हैं, Saxons आते हैं यहाँ से, जर्मनी से. ये एरिया सैक्सन्स का एरिया है, ये एरिया भी सैक्सन्स का एरिया है. और जब उन्होंने यहाँ पे स्कॉटलैंड के थ्रू आए, they are known as Anglo-Saxons. So Anglo-Saxons are also part of the Germanic tribes. Same, cousins, you can say. And then due to colonization, they spread all over the place. So this is the home country for Anglo-Saxons. And in the colonization wars, they defeated France, they defeated Spain, they defeated Portugal, they defeated Italians, they defeated Germany, they defeated, and Poland was always part of, it's like an Eastern Bloc. Orthodoxy was common, now it is Catholic. And this part was more Sanatani, but still the Catholicism spread over there also. And all of them are kingdoms. ये kingdoms हैं सारे के सारे. They're all kingdoms. Now, coming to the home country, this is a home country. And what are their colonies? We can go one by one and we can say, and this is what they're saving. This is what they're protecting. They don't want Indians to look at that. What they've done is, उन्होंने पूरी दुनिया में जमीन एक्वायर करी कोलोनाइजेशन में, और अब उसी को बचाने के लिए उन्होंने बनाया यूनाइटेड नेशंस, उसी को बचाने के लिए उन्होंने बनाया ऑल द इंटरनेशनल बॉडीज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद. एंड ऑल दोज बॉडीज जो है उनका कोलोनाइजेशन को लीगलाइज कर दिया थ्रू द नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट. नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट बहुत ही रीसेंट कॉन्सेप्ट है. नाउ दे इनिशियली सेड डेमोक्रेसी, but they are scared of democracy. So now they are calling themselves constitutional republic. Aristotelian idea. Aristotle was not a Christian. Aristotle was a Greek philosopher. बहुत पहले का है. Socrates, Aristotle, Plato. I think Plato's disciple. Or Aristotle, I don't know. I keep forgetting who's disciple of who. But anyway, these are 3 pillars. And none of them were Christians. So कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक जो है आइडिया भी नॉन क्रिश्चियन है. जैसे बाइबल में देयर इज नथिंग ओरिजिनल. बाइबल में एवरीथिंग इज बाइब्लिकल मिथोलॉजी. नॉर्स कोड बिकेम बाइबल. एंड इफ यू वांट टू रीड दिस, रीड द बुक ऑफ नॉर्मन डेविस. सर्च इट आउट, यू विल फाइंड इट. चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं. ये होम कंट्री है. तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है जब भारत बात करता है, बात कैसे कर दिया. दैट प्राइड दे हैव. हाउ डिड ही टॉक. And I was very surprised why Vivek Ramaswamy did not reply. He's so smart and he was defensive. Why didn't he say the facts? That means his mind is programmed by the American education and he cannot think outside of it. उसका भी दिमाग पागल कर दिया इन लोगों ने. अब अगर आप वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में पढ़ते हैं इतिहास को, तो आप मेरे जैसा बात नहीं कर सकते हैं. माई नॉलेज ऑफ हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम महाभारत, और मैं महाभारत के पक्ष को ही रखता हूं. तो महाभारत के हिसाब से
ये सारा सनातनी देश है. It is always under the rule of Bharat, and this is what they are scared of. Remember, they are scared. The real history is with us, Hindus, Sanatani, and I want Indian Americans to take serious objection to such comments. Actually, it's very demeaning. That's why मुझे टकर कार्लसन भी पसंद नहीं है. I don't like Tucker Carlson's opinions because it's a very shallow, and Putin showed him the mirror. You don't know any history because the American education system is designed to make you the slave of Anglo-Saxon narrative. It is not the history of Anglo in American textbooks. It's horrible. I think all history departments are propaganda machines. Anyway, but there are some good researchers also, which I'm going to quote. It's not that everyone is bad. Either rotten apples are there, but good apples are also there. You keep aside the rotten apples and then read the good apples. So ये इतिहास है. यहाँ पे इसको बचाने के लिए यही पूरा चल रहा है. इनकी पॉपुलेशन कम होती रहती है, वो हमारे पुराणों में भी है. यहाँ की औरतों को ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस नहीं करती हैं. इनका नेचर ही ऐसा है इन स्त्रियों का. और यहाँ के लोग भी इतने प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो वीर्य होता है वो गर्म जो टेरिटरीज में ज्यादा होता है. इतना नहीं हो सकता यहाँ पे. तो पॉपुलेशन यहाँ पे कम होती रहेगी. वेदर इज ऑल्सो वेरी हार्श. और जो भी यहाँ पे माइग्रेट कर रहे हैं, बिलीव में, जो भी यहाँ पे आ रहे हैं इलीगल और लीगल, कोई भी लीगल नहीं होता. आई टोटली एग्री विद दैट. नो ह्यूमन बीइंग इज इलीगल. आई टोटली एग्री विद दैट. क्योंकि नेशन स्टेट बाउंड्रीज आर इलीगल. नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट इज इलीगल. ओके, तो इसलिए कोई ह्यूमन इलीगल नहीं है. दे कांट, उनको ये रीजन नहीं मालूम है. बट आई एम टेलिंग यू, कोई नो ह्यूमन बीइंग कैन बी इलीगल बिकॉज वो भूमि पे जन्म लिया है अपने पिछले कर्मों से. इतने कर्म करके आया है वो. 84 लाख योनि में घूम कर आया है, तो कैसे इलीगल हो जाएगा? तो नो मनुष्य इज इलीगल. उसको मिला है जमीन भाई, मृत्यु लोक में आया है 84 लाख योनि से. वो चाहे कुछ भी मानता हो, अपने आप को कुत्ता माने, बिल्ली माने, या अपने आप को कुछ भी माने, वो डजंट मैटर. बट नो वन इज लीगल. कोई भी नहीं है. लेकिन नेशन स्टेट कॉन्सेप्ट इज इलीगल. जैसे आर्टिफिशियल बाउंड्रीज बना दी गई. बांग्लादेश जो पहले बंग देश था भारत का, वहां के लोग तो, म्यांमार तो भारत का ही प्रांत था पहले. तो अब वहां पे लोग आ रहे हैं इधर. हिसाब से तो म्यांमार को मर्ज होना चाहिए भारत से, बांग्लादेश को वापस मर्ज होना चाहिए. और पाकिस्तान में जो उनका जो मानसिकता है, इस्लामिक मानसिकता, उसको निकाल के मर्ज होना चाहिए. बांग्लादेश में भी ये होना चाहिए. वहां पे तो लोग अभी भी साड़ी पहनते हैं, बिंदी पहनते हैं. तो वो चल रहा है, अभी चल रहा है. प्रोसेस इज गोइंग ऑन. स्टार्टेड फ्रॉम मिडिल ईस्ट. सोर्स पहले शुरू हुआ है. इज गोइंग टू पर्कुलेट स्लोली. टेक सम टाइम. डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स. लेकिन एंग्लो सैक्सन्स को समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा है उनको जमीन खोने का खतरा है. ठीक है, यही खतरा है. इसी को बचाने के लिए भारत पे आक्रमण किए जाते हैं, क्योंकि भारतीय लोग खुल के बात कर देते हैं. हम भोले भाले हैं ना, खुल के बता देते हैं. जबकि ये सारा काम भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज को करना चाहिए. उनका काम है इस नैरेटिव को काउंटर करना. चलिए कोई बात नहीं, हम लोग तो जगन्नाथ जी का नाम लेके कर रहे हैं. सो दिस इज द होम कंट्री विच इज ट्राइंग टू डिफेंड. किसको डिफेंड कर रही है? कॉलोनीज को. उसकी सबसे बड़ी कॉलोनी कौन सी है? छोटी छोटी चलते हैं. उसकी कॉलोनी अंगीला. अभी अंगीला कौन सी जगह है भाई? अंगीला जगह है, बहुत ही सुंदर जगह है. यहाँ पे कॉलोनीज बनी हुई है. अब देखते हैं, ब्रिटिश टेरिटरी है, मेन आइलैंड है, सेवरल ऑफशोर आइलैंड्स, और यहाँ पे रिलीजन से कन्वर्ट कर दिया गया सबको. नाम भी बदल दिए गए. बट यहाँ के लोगों को क्या बोलते हैं? वहां के लोग क्या बोलते हैं अपने आप को? कड़क लोग. कड़क कॉमन नेम है, कड़क, है ना. ये पहली टेरिटरी है. बचना चाहिए इससे, बचाना चाहिए हमको. देन
इसका इंडिपेंडेंस होना चाहिए, फिर इसका भी इंडिपेंडेंस होना चाहिए, कि होम कंट्री तो यही है, दिस इज होम कंट्री, द ब्रेन। चाहे कुछ भी बोल दे, अपनी कॉलोनीज का ब्रेन यूज करते हैं, खुद का यूज करते हैं, तो यही है, यहाँ पर ही है। फिर इलीगल स्टेट ने बना दिया इलीगल पॉइंट। अभी क्या करेंगे अंटार्कटिका में वो लोग? ऑलरेडी वहां पे बहुत बर्फ होती है, क्या करोगे इधर? कौन सा रिसर्च करोगे? ब्रिटेन ने कौन सा रिसर्च आज तक प्रोड्यूस किया है? हैज ब्रिटेन प्रोड्यूस एनी ओरिजिनल रिसर्च? नो। चोरी का माल हर जगह। ओके, चोरी का माल खुद का माल नहीं होता है। फिर उनका तीसरा कॉलोनी, उनका चौथा कॉलोनी जो है, पांचवा कॉलोनी है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। दिस टेरिटरी एक्चुअली बिलोंग्स टू इंडिया, भारत। वहां पे लोगों को बाहर मार के पता नहीं कहां भेज दिया, मॉरिशस भेज दिया। इसमें मॉरिशस भी क्लेम करता है, क्योंकि मॉरिशस भी भारत का ही द्वीप बोला जाए तो। वो फ्रेंच कॉलोनी था, तो ये टेरिटरी भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, है ना। इसको लंका का नाम देना चाहिए। फिर इनकी कॉलोनी है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स। अरे भाई, कहाँ का वर्जिन आइलैंड्स है भाई? ये कॉलोनी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। यॉट यहाँ पे लगाई जाती है ब्रिटिश की। द सेटलमेंट, यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में, इसको इंडिपेंडेंट करना चाहिए। इसको बचा रहे हैं, इसीलिए भी मोदी जी पे आक्रमण है, इसीलिए भारत पे आक्रमण है, क्योंकि भारत बोल देगा ग्लोबल साउथ में all these countries, all these territories are illegal occupation, must be taken away from the Britain, new small Britain, I call it, the illegal colonies। इसका इंडिपेंडेंस होना चाहिए, पार्ट ऑफ ग्लोबल साउथ। यहाँ पे राम का मंदिर बनाना चाहिए। केमन आइलैंड्स, द सोर्स ऑफ ऑल द illegal financial trade, everything, Cayman Islands, everyone runs to Cayman Islands। वहां पे बैंक्स है, कोई रहता नहीं है लेकिन बैंक्स है बड़ी बड़ी। क्यों? एग्जैक्टली यही पर्पस है, मनी राउटिंग। लंदन वॉज ए हब ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर मनी राउटिंग, तो वहां से भी निकालना चाहिए, वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद फॉकलैंड आइलैंड्स। why do Britain needs to have territory there? Why? Because to look after to fight with the Catholic Church। यहाँ पे चर्च इन्वॉल्व है, चर्च और इंग्लैंड को अलग मत मानिए, एक ही है वो, डीप स्टेट वही चलाते हैं। तो व्हाई इज देयर, व्हाई इज नीडेड? इट शुड बी इंडिपेंडेंट। It should not be given to Argentina. Argentina is a colony, cannot be given there. It should be made independent, part of the global south। देन उसके बाद है जिब्राल्टर। इसकी क्या जरूरत भाई? क्योंकि ये नजर रख रहा है कैथोलिक ऑर्गेनाइजेशंस में, ये बाउंड्री है इसकी, ये ब्रिटिश टेरिटरी है, वहां पे लगाया हुआ है युद्ध करने के लिए। किसको युद्ध कर रहे हो भाई? तुम्हारे लोग हैं सारे? नहीं, हम लोग को युद्ध करना है क्योंकि हम ग्लोबल पावर है। और एक बात याद रखिए, ब्रिटिश टेरिटरीज आर यूज इंटरचेंजेबली विद द अमेरिकन टेरिटरीज, बोथ आर यूज इंटरचेंजेबली। ये सारे अमेरिकन नेवल बेसिस भी है। मोन्सरात, these are not, why do you need this territory in the middle of South America? Why it's used here? Why? Because these are all territories used for illegally for many operations, but biggest operation is naval operation, to fight with other people। यहाँ पे nobody lives there, there is no population there। भारत के, there should be all over this place Hindu temples or native temples, all those cultures, no, everything is wiped out। Everything is Anglo-Saxon taste, Anglo-Saxon food, Anglo-Saxon this, Anglo-Saxon that going on। I'm not against Anglo-Saxon, there are many good friends of mine, but I'm saying the political mindset, Anglo-Saxon culture, there is no Anglo-Saxon culture। In UK the culture is fish and chips, because that's what they can grow, that's what they can eat।
and chips also come from some other place. आलू तो उगता नहीं है. Okay. Then you have पैसिफिक के बीचों बीच आइलैंड है भाई. व्हाट दे हैव टू डू हियर? इसको भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, गिवन टू नेटिव्स. हमारी सुग्रीव की सेनाएं गई थी ढूंढने के लिए सीता को इन सब जगहों पे. तो ये सब रामायण के थे हमारे. बहुत पुराना क्लेम है हमारा. आवर क्लेम इज वेरी ओल्ड. फिर अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में आइलैंड है सेंट हेलिना. वो भी ऑफशोरिंग का सारा करप्शन प्लेसेस है. For global security, all these places must be made independent. Just remove the state monarchy control over there. Church of England has no basis to be there. No basis. Human rights. Where are the human rights? When you force people to follow your own religion, where are the human rights? कहाँ गए तुम्हारा मानव अधिकार? क्योंकि कभी देना ही नहीं है. आप कौन होते हो देने वाले मानव अधिकार? मानव अधिकार देने वाले तो जिसने मानव बनाया उसने उसको देना चाहिए ना. वो तो प्रजापति है. ब्रह्मा ने मानव अधिकार बनाए हैं तो ब्रह्मा को देना चाहिए. ब्रह्मा ने ऑलरेडी सबको दिया हुआ है स्वतंत्रता. ये लोग सब ब्रह्मा के ब्रह्मा ने जो अधिकार दिए उनके बाप बनना चाहते हैं. हो तो सकता नहीं है. सबकी आयु तो निर्धारित है 100 वर्ष है ना. 80 साल में लोग जाओगे होगा ये. फिर ये एक साइप्रस में वो भी कॉलोनी है. साइप्रस का कहानी कभी आपको मैं बताऊंगा. आपको बड़ा दुख होगा सुनकर. ये पूरे एरिया में ब्रिटिश ने इतना ज्यादा इन्होंने गड़बड़ी मचाई है कि सारा मिडिल ईस्ट का प्रॉब्लम्स हैव कम फ्रॉम स्मॉल ब्रिटेन, चर्च ऑफ इंग्लैंड. इनको कुछ पता होता नहीं है. और आपको लगता है बड़े बड़े युद्ध लड़े. नहीं, 700 सोल्जर 1200 सोल्जर के युद्ध हैं सारे. उनको पेपर पे ऐसा बड़ा दिखाया गया है. मतलब अगर आज के उसमें देखेंगे तो बोलेंगे दंगे. उसको इन्होंने युद्ध बताया. वॉर. 700 सोल्जर्स, 1200 सोल्जर्स, 1500 सोल्जर्स. अरे हमारे यहाँ तो वॉर जब होता है तो हम अक्षौणी की बात कर रहे हैं. मतलब 5 लाख 10 लाख लोग जा रहे हैं. यहाँ पे तो 500 600 700 उसको वॉर बोलते हैं. ओके. और सारा ट्रीटीज पेपर्स देखो भाई. मैंने पेपर लिखा है इधर, इसके थ्रू देखो. इस तरह बात हुई. और लोग जो अनपढ़ लोग हैं समझ अरे भाई पेपर लिखा है कुछ होगा इंपॉर्टेंट. डॉक्यूमेंटेशन वॉज यूज्ड एज ए स्ट्रेटेजी टू सबड्यू पीपल. लिख लिख कर लोगों को गुलाम बनाया गया है. देखो लिखा हुआ है. किसने लिखा? आप कोई रिसर्च ही नहीं कर रहा है. मतलब आई एम द प्लेंटिफ, आई एम द जज, आई एम द डिफेंडर एंड आई एम एवरीथिंग. दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन. ओके. ये बहुत ही भयंकर है. इसी को बचा रहे हैं ये. इसको बचाने के लिए खान मार्केट गैंग चल रहा है. इंटरनेशनल खान मार्केट गैंग इसी दुनिया को बचाने के लिए चल रहा है. और भारत ने जब ग्लोबल साउथ में G21 में अफ्रीका को इंक्लूड किया, इन सबके कान खड़े हो गए. जयशंकर जी खुल के बात कर रहे हैं. कैसे बात कर सकता है ब्राउन स्किन? हाउ कैन ब्राउन स्किन टॉक? दैट्स द एरोगेंस. ओ वी क्रिश्चियंस आर वेरी पीसफुल पीपल. टकर कार्लसन बोलता है अरे क्रिश्चियन का इतिहास तो मर्डरस इतिहास है. क्या मालूम है इतिहास टकर कार्लसन को? कुछ मालूम ही नहीं है उसको. व्हाट डज ही नो? Just because you have money and you know how to raise money doesn't mean you are truthful. हमारे पास पैसा नहीं है लेकिन हम सतोलॉजी है. सत्यमेव जयते. जब जगन्नाथ जी को देना होगा तो हमको छप्पर फाड़ के मिलेगा. विल बी द रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन आई एम जस्ट सेइंग पैसे पे घमंड किसी को नहीं करना चाहिए. वो आता है जाता है. विष्णु की सेवा करनी चाहिए. भगवान विष्णु की सेवा करनी चाहिए. उसी को धर्म बोलते हैं. टर्क्स and Caicos Islands must be made independent. Why they are there? Why they are there? Yeah? And फिर उसके बाद आ रहा है आपका बड़ा कॉलोनी कनाडा. पूरा खालिस्तान प्रोजेक्ट started by the British and put in the Canada.
ब्रिटिश स्ट्रेटेजी था वो टू डिफीट सिख कल्चर। महाराज दिलीप सिंह को भी कन्वर्ट करा दिया, ओके, रणजीत सिंह जी के वंश के, उनको भी कन्वर्ट करा दिया। और इतना भयंकर उनका स्ट्रेटेजी क्या था, क्या किया? और दीज आर द मार्शल ट्राइब्स, सिख, गोरखा। अरे भाई, आर यू क्रेजी? पूरा भारत इज अ मार्शल ट्राइब। मराठाओं ने मुगल को हराया और ब्रिटिश ने डॉक्यूमेंट देख के मराठाओं को हराया। अब हमको डॉक्यूमेंट देख के ही हराना इन लोगों को। ओके, लिखा हुआ है, देखो महाभारत में लिखा हुआ है, महाभारत में लिखा हुआ है चीन हमको कर देता था, 4 बार लिखा है। अब कर दो भाई, चीन कर दो। महाभारत में लिखा है शकों के बारे में, तुम अर्जुन के अधीन हो, अब हस्तिनापुर को कर दो। मांगो न्यू इंग्लैंड, इंग्लैंड से कर मांगो महाभारत के आधार पे। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो ऐसा बोलता कि भाई महाभारत में लिखा है कर दो। फिर आपका इनका सबसे बड़ा कॉलोनी यूनाइटेड स्टेट्स। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका में एक भी नेटिव अमेरिकन सिग्नेटरी नहीं है, डिस्कशन में इंक्लूड ही नहीं किया यहां के लोगों को। तो मतलब एंग्लो सैक्सन लोगों ने अपने चर्च के विरुद्ध आजादी ली और अपने आप को फ्री बोलते हैं। फ्रॉम हु? फ्रॉम चर्च ऑफ इंग्लैंड। इंडिपेंडेंस ऑफ यूएसए इज अगेंस्ट फ्रॉम द चर्च ऑफ इंग्लैंड, फ्रॉम द किंग ऑफ इंग्लैंड, इज रिटन इन द प्रीएम्बल, पूरा लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, इतिहास है। तो भाई नेटिव अमेरिकन का क्या हुआ जो मूल निवासी थे इधर के? इसको बचाने के लिए, इस लीगैलिटी पे कोई क्वेश्चन ना करे, आज भी नेटिव अमेरिकन को रिजर्वेशन डाला हुआ है। बोलते थे ब्लैक बर्डिंग। मालूम है ब्लैक बर्डिंग क्या अर्थ होता है? ब्लैक बर्डिंग का अर्थ होता है जो काले स्किन का जो आदमी है उसको पकड़ के गुलाम बना दो, वो चिड़िया के जैसा है, पकड़ लो, जानवर पिंजड़े में डाल दो। Reservation strategy was used in all British colonies, French colonies, Spanish colonies. स्पेनिश कॉलोनीज में कुछ और ही स्ट्रेटेजी था, वो मैं बताता हूं आपको। टिल डेट क्रिस्टी नोएम, साउथ डकोटा में, जो यहाँ की जो गवर्नर है इस एरिया की, वो आज भी हड़प रही है लोगों की जमीन, नेवर एंडेड। इसको छुपाने के लिए मोदी जी पे आक्रमण, समझे आप? ये अभी भी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, फ्लूइड सिचुएशन है। पूरा जो अमेरिका बसा हुआ है सिटीज में बसा हुआ है, कोस्टल, बीच में कुछ नहीं है। ओके, ये वही वाला मानसिकता है, कोस्ट को कंट्रोल करो, अंदर जो चल रहा है चलने दो, छुपा दो। नो अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट्स ऑन दिस, नो अमेरिकन मीडिया टॉक्स अबाउट, नो मेन स्ट्रीम अमेरिकन मीडिया इज डिस्कनेक्टेड विद नेटिव अमेरिकन्स, with all other cultures, disconnected. There is no Hindu, no Buddhist, very few Buddhist people come, no cultural representation. Colonial media, Anglo-Saxon media, WASP. Nobody watches them except Anglo-Saxons. And the religion is, oh, we are Judeo-Christian country. Who said Judeo-Christian? Self-certificate. We are a Judeo-Christian country. Well, USA Constitution was founded by Anglo-Saxons against Church of England. What about the rest of the people? What about Native Americans? What about American Indians? What about them? Total joke. No media talks about this. Even विवेक रामास्वामी नहीं बात करता, डर लगता है उसको, है ना? This is the fact of the matter. इसको छुपाने के लिए भारत पे आक्रमण करो। किसी अमेरिकन को पढ़ी नहीं है, कोई ना न्यूयॉर्क पोस्ट पढ़ता है, ना न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ता है, ना वॉशिंगटन पोस्ट जो जेफ बेजोस का है वो भी कोई नहीं पढ़ता। Nobody reads. All used by the Church of England for propaganda, for international work, to hide what is happening in America. 11 million illegals came. Nobody is illegal. They all came because nation state, सारे जगह गड़बड़ी तो अमेरिका ने मचाया उनके देशों में, तो कहां जाएंगे? अमेरिका आना पड़ेगा उनको।
तो हाउ यू आर जस्ट लिविंग द कॉज ऑफ योर ओन कर्मा, अपने कर्म पे जी रहे हो. दे हैव टू कम. And then now they are saying, oh, it's a strategy because who Americans are not producing. We need these illegals to be part of economy. Anglish have predicted also. They are the voters now, Democrat voters. I don't care about Democrat versus Republican. I'm talking about human rights, basic human rights. मानव अधिकार. हम धर्म की दृष्टि से देख रहे हैं. I'm seeing from the point of view of Vedic culture, dharma, Sanatan dharma. Every human right, every human being should be allowed to practice everything freely, whatever they want to do. तो इसलिए दो ही ग्रुप बनाए गए, one based on classical liberalism, another based on classical conservatism. क्लासिकल कंजर्वेटिविज्म पे बेस है रिपब्लिकन, चर्च ऑफ इंग्लैंड की पार्टी, वास्प्स, व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट पार्टी. और उसका दूसरा ग्रुप है क्लासिकल लिबरलिज्म, जो फ्रांस से इंस्पायर्ड है, डेमोक्रेट्स. वो भी वास्प ही चलाते हैं. तो यूनिटरी पार्टी हो गया. चर्च इज द यूनाइटिंग फैक्टर. 70% आर वास्प. चर्च इज यूनाइटिंग फैक्टर, चर्च ऑफ इंग्लैंड. शायद नाम जो एपिस्कोपल, प्रेस्बिटेरियन और ये जितना भी नाम है, दे एडवेंटिस्ट चर्च, 26-27 churches are there main, but बाकी branches are there. They are all considered separate religions. All of them are separate religions. Catholics and Christians don't go together. Catholics उनके enemies हैं. Okay, major differences हैं दोनों के बीच. तो अगेन चर्च ऑफ इंग्लैंड, ये भी इसको छुपाने के लिए. अब भारत पे आक्रमण करो, क्योंकि भारतीय डेमोक्रेसी is the most vibrant democracy, and they hate the fact that India protects native indigenous population of India. All Hindus, my definition is different. जो भी हिंदू है, सनातन धर्म का पालन कर रहा है, जो भी भारत में सनातन धर्म का पालन कर रहा है और वहीं के जमीन का रिलीजन फॉलो कर रहा है, सनातन धर्म, और वही मानसिकता रखता है, वो सब जो है नेटिव्स है. यहां पे कोई नेटिव नहीं है जो राज कर रहा है, सारे कॉलोनियल है, सेटलर्स है, सेटलर्स की इकोनॉमी है. ओके, इसलिए पुलिस स्टेट है. अगर कोई सुने ना, मार दो उसको, पकड़ लो, जेल में डाल दो. इनकार्सरेशन इज मैक्सिमम इन नॉर्थ अमेरिका फॉर स्मॉल थिंग्स. ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट इज आपका 17. फिर उसके बाद चलते हैं ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया भी सेम एंग्लो सैक्सन चर्च ऑफ इंग्लैंड कॉलोनी है. इसको भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए. मूव टू ग्लोबल साउथ. देन यू हैव न्यूजीलैंड, सेम. एंड आई फॉरगॉट ऑल दीज आइलैंड्स. पपुआ न्यू गिनिया, ये तो फ्रेंच है. न्यू कैलेडोनिया तो फ्रेंच, वहां राइट्स चल रहे हैं वहां पे. सेम स्ट्रेटेजी उन्हें भी. पपुआ न्यू गिनिया ब्रिटिश कॉलोनी है, ऐसा लाइन खींच दिया, जैसे ब्रिटिश, ये ब्रिटिश हो गया, इंडोनेशियन हो गया. ओके, सोलोमन आइलैंड्स इंडिपेंडेंट मानते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है. ओके, दिस इज द ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज. इन सबको छुपाने के लिए भारत पे आक्रमण किया जाता है कि भारत क्वेश्चन न कर दे कभी. अब चलते हैं एक और पॉइंट पे. अब हम चलते हैं अमेरिकन ओवरसीज टेरिटरीज पे. ठीक है, उसको हम लोग लोड करते हैं. यह है अमेरिकन समोआ. है तो वही एंग्लो सैक्सन्स का ही है अमेरिकन समोआ. मिलिट्री बेसिस है वहां पे. उसी के पास में है बाम और नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड्स जापान के पास. ये सारे मिलिट्री हैं. तो ब्रिटिश 19 थी, ब्रिटिश 19 थी इंक्लूडिंग अमेरिका.
तो उनका ही कॉलोनी का और कॉलोनीज भी है। ओके, इसको भी छुपाया जा रहा है। अभी इस पे क्वेश्चन हो इसलिए हायर किया जाता है इंडियंस को, ताकि इंडियंस के अगेंस्ट बकवास करो। एंड आई विल शो यू ऑल दोस थिंग्स एक्चुअली इन डिटेल। पोर्टो रिको, वो भी कॉलोनी है। यूएस वर्जिन आइलैंड्स, ये भी कॉलोनी है। और फिलीपींस बड़ी कॉलोनी है, बेसिस है। ठीक है, फिलीपींस बड़े बेसिस है। और फिर आते हैं फ्रेंच के ऊपर। फ्रेंच सबसे छुपा हुआ काम करते हैं। अफ्रीका में 14 देश हैं इनके, जो जनरली इस एरिया में है, उस सब इनकी कॉलोनीज है। यहाँ पे करेंसीज भी ये खुद ही प्रिंट करते हैं। इनका फ्रैंक ही चलता है, वो चलता है। फिर इनकी कॉलोनी है रियूनियन, वहां पे आपने सुना था थोड़े दिनों पहले राइट्स हुए थे बहुत सारे। इसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसको छुपाने के लिए भारत दोस्त है, मैक्रोन इसको छुपाते हैं ना। मयोटे दोस्त, क्या एयरफोर्स है इनकी, कुछ नहीं है। बट भारत भारत अपने प्लेन डेवलप भी नहीं करते हैं वो लोग, फोकस नहीं करते हैं। ये जितना अच्छा फाइटर है, अमेरिका जो है अपना फाइटर चाहे बकवास भी होगा उसको अच्छा बुलाएगा, है ना। F-35 थोड़ा बकवास फाइटर है, उसको सेनेट हियरिंग में उसको गाली दिया गया, लेकिन बताएगा कितना भयंकर फाइटर है। लड़ा नहीं है आज तक वो कभी भी, F-22 लड़ा नहीं है। तो बट अपने मुंह मियां मिट्ठू, अपने को सेल्फ सर्टिफिकेट, मेरे डॉक्यूमेंट्स है। अगर भारत को खुला छोड़ दिया जाएगा प्राइवेटाइज बॉडी में, तो देखिए हम लोग भारत के इंजीनियर्स, मैं तो खुद ही प्रोग्राम मैनेजर्स और ये सब मैनेज करता हूँ। आई नो हाउ वी कैन टर्न इट आउट क्विकली, एवरीथिंग विदाउट एनी डिलेस। लेकिन भारत यूटिलाइज ही नहीं करता अपने स्किल सेट, ट्रस्ट ही नहीं करते अपने लोगों पे, गुरों पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगे। जबकि अगर आप देखें वर्ल्ड का बेस्ट डिब्बे वाला आपको दिखता है बॉम्बे से, मैं बॉम्बे से हूँ, तो दिखता है आपको मुंबई से, तो कि वहां पे आपको दिखता है डिब्बे वाले कितना एफिशिएंटली मैनेज करते हैं। तो जब ब्रिटिश रिपोर्ट में आता है तब भारतीय बोलते हैं देखो कितना अच्छा मैनेजमेंट है। कैन यू इमेजिन द फूलिशनेस ऑफ सनातनी। हर चीज बुलाएंगे सनातनी अपने आप को, जबकि वो शब्द ही ठीक नहीं है। बुलाएंगे तो धर्म ही, लेकिन दूसरों को बोलेंगे कि अरे बुद्धों ने कितना अच्छा काम किया। आप किसी गांव में चले जाइए महाराष्ट्र में, सफाई मिलेगी आपको, सारे लंगर सारे भोजन एकदम साफ सुथरा, एकदम क्लीन। गांव में, महाराष्ट्र के गांव में जाइए, देखिए कितना क्लीन रहता है महाराष्ट्र के गांव। सांगली, सतारा, कहीं भी जाइए छोटे छोटे शहरों में, एकदम साफ सुथरे। महाराष्ट्र में चाल में जाइए, कितना सफाई रहता है। बट दुनिया में बताते हैं अरे यूरोप में कितना है। कभी घूमिए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के गांव में घूमिए, आपको पता लगेगा कितना सफाई रहता है। हम्म? लेकिन दूर के ढोल सुहावने होते हैं ना, चलता है। नंबर 4, फ्रेंच पॉलिनेशिया। ये क्या कर रहा है भाई इंडियन ओशन में? भारत के नीचे क्या कर रहा है ये? हाँ, क्या कर रहा है ये? पैसिफिक में फ्रेंच गायना, ये तो पूरा देश ही है उनका, ओपनली। फ्रेंच गायना ये फ्रेंच टेरिटरी है पूरा का पूरा, इतना बड़ा एरिया। कोई क्वेश्चन नहीं, छुपा रहा है उसको। भारत को लगाना चाहिए, इंडिपेंडेंस करो उसको वापस, इंडिजिनस लोगों को वापस दो देश। इसको छुपा रहा है। इसीलिए सारा इंटरनेशनल खान मार्केट गैंग काम कर रहा है, भारत से डरा हुआ है। G21 हो गया, G23 ना हो जाए, ग्लोबल साउथ में सब ना आ जाए। देयर शुड बी led by India a parliament where they should call all these countries as global south. All the global south members should be sitting independently. UN का चार्टर है, the UN charter says to make all these countries independent, but nobody is following it because they themselves are sitting on the UN charter. वो बोल उसको छुपा रहे हैं। और भारत के जो मूर्ख पार्टीज हैं, कांग्रेस पार्टी है और ये सब बकवास पार्टीज हैं, ये इन्हीं के गुलाम है, इन्हीं के गुलाम है। इसको समझिए आप, चर्च ऑफ इंग्लैंड के गुलाम है सबके सब। चर्च ऑफ इंग्लैंड ये तो बोलेगा नहीं कि हम क्या करना है, वो बोलते हैं पैसा ले लो,
डॉलर्स। अब दुनिया बोल रही है डॉलर ही छीन लो इनका, ऐसा बोल रही है ना, गोल्ड स्टैंडर्ड। अब देखिए ये टेरिटरी है होते, यहाँ पे राइट्स हो रहे हैं, इसको छुपा रहा है फ्रांस। और फ्रांस में तो और भी खराब हालत है, पेरिस भूल कर भी मत जाना, पिट पिट के आ जाओगे, कभी नहीं जाना पेरिस। पता लगा लव फोटो ले रहे हो सेल्फी, और उधर से हो गया रियल सेल्फी सीधा। राम राम सत्य है, राम नाम सत्य है। न्यू कैलेडोनिया में प्रोटेस्ट चल रहा है। फ्रेंच 41% नेटिव पॉपुलेशन है, वहां राइट्स कर रही है वोटिंग अधिकार लेने के लिए। सिर्फ सेक्शंस को ही, फ्रेंच सेक्शंस को ही अलाउड है वोटिंग अधिकार देने के लिए। फ्रांस इज द वर्स्ट कोलोनाइजर, वेरी बैड कंट्री फॉर कोलोनाइज पीपल। बाकी सभी उकले हैं, लेकिन फ्रांस भी कम नहीं है किसी से भी, तो दोस्त नहीं मानिए कहीं पर। ये सब छुपा रहे हैं। अच्छा सूट पहन के बंदर अच्छा लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बंदर बंदर ही रहेगा, समझ लीजिए आप। डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय अरमानीज एंड जुकी, डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय दैट। अपना पजामा कुर्ता पहन के देखो, आई एम जस्ट वेयरिंग ए सिंपल शर्ट, डजंट मैटर, नो ब्रांड नीडेड। कुछ लोग बोलते हैं मुझे, दे आदित्य जब ब्रांड पहनते हैं ना, आई जस्ट लुक फॉर क्वालिटी। और मैं ब्रांड में बिल्कुल नहीं, मेरे किसी भी कुर्ते का ब्रांड नहीं है, सबसे सस्ते वाला कुर्ता होता है। शर्ट्स ओके, सैन पियरे मिगेलियन, इसको इंडिपेंडेंट किया जाए। ये कहाँ पे, कनाडा के पास में है। और कनाडा में क्वेबेक करके जगह है, पूरा वो कॉलोनी है पूरा का पूरा। ये है भाई, इसी को छुपा रहे हैं सब लोग, दिस व्हाट इज देयर हाइडिंग। और स्पेन ने तो बुरा हालत किया हुआ है, यू जस्ट आई शो यू सम प्लेसेस एंड यू विल बी लाइक शॉक्ड। ठीक है, ये दिख रहा है अफ्रीका के पास के, बट देयर आर मेनी कंट्रीज इन अफ्रीका स्पीक पोर्चुगीज, ओके, एंड सम कंट्रीज इन अफ्रीका स्पीक स्पेनिश। बट ये तो पूरा का पूरा कॉलोनी है पोर्चुगीज और स्पेनिश का, पूरा कॉलोनी है। द कैथोलिक चर्च व्हाट दे डिड वाज कि पूरा नेटिव अमेरिकन इंडिजिनस कम्युनिटी का मंदिर तोड़े, उसको अब्सॉर्ब कर लिया। और ब्राजील में बोलते हैं कि ओनली फ्रेंच पोर्चुगीज मोनार्की, पोर्चुगीज इज देयर होम, डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग। लेकिन फिर भी 40% लोग बचे हुए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं से प्रकृति बचा देती है। कलयुग में लिखा हुआ है कि सब अच्छे लोग जंगलों में भाग जाएंगे। अमेरिका में से शुरुआत हो रही है, सभी जंगलों में जा रहे हैं, मैं भी शहर से बाहर ही रहता हूँ। अभी क्या करेंगे हम लोग, व्हाट विल यू डू? ऑल द गुड पीपल हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दीस पीपल, दे आर ऑल बैड। इसलिए भारत को गाली दे रहे हैं। ये इंटरनेशनल कुछ छुपाना तो चाहिए ना। अब देखिए क्या क्या छुपा रहे हैं यहाँ पे, ये सब मिल गए एंग्लो सैक्सन मिडिल ईस्ट का तेल चुरा रहे हैं। बिकॉज मुसलमानों को करप्ट करना बड़ा आसान काम होता है, खरीद लो, जहांगीर को खरीद लिया भारत को गुलाम बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है, इनको गुलाम बनाना बड़ा आसान काम है, हम देर में सिक्योरिटी देंगे। एंड दीज कंट्रीज आर स्टिल बाइंग द ओल्ड प्रॉमिस फॉर विच दे वर कॉलोनाइज्ड। बोलते हैं हम इस्लामिक देश है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, दे स्टिल कॉलोनाइज्ड। ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया था जब बनाया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आपको मालूम है 1952 तक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इंडियन रुपी चलता था। इंडियन रुपी, ओमान में मस्कट, ये सब इंडियन रुपी चलता था इधर, ये सब ब्रिटिश टेरिटरीज थी, इनकी सिक्योरिटी मुंबई से होती थी। मालूम है आपको? ये किसी को मालूम ही नहीं है। अब वापस वहीं पे आ रहा है, भारत वापस आ रहा है, बिकॉज they and they still buy the same arguments. I'm just shocked at MBS इंटेलिजेंस सऊदी अरेबिया, कि आपको पहले भी बोला था सिक्योरिटी, फिर वापस अमेरिका के बाजार सिक्योरिटी देने के लिए। सिक्योरिटी तो नहीं मिलेगा आपको, ग्रेटर इजराइल बनेगा, उनको बेस चाहिए यहाँ पे, पूरा एक्सपेंड करेंगे वो लोग। अब इतना बड़ा रीजन, इसके सिक्योरिटी कौन देखेगा? इजराइल और अमेरिका, क्योंकि क्या चाहिए? तेल, बचा कुचा तेल भी निकाल लेंगे। ये सब एरियाज में कंट्रोल बचा नहीं है, यहां से बचा कुचा तेल निकालेंगे, इनको डिस्टेबलाइज करेंगे। ईरान में
शाह को कौन लेकर आया था? अमेरिका लेकर आया था 79 में। 79 में से पहले लेकर आया था कि 73 के बाद ऑयल होगा, पेट्रो करेंसी। अब ये काली करतूतों को छुपाने के लिए भारत पे आक्रमण, कहीं भारत इनके बारे में बात नहीं, क्योंकि भारत का स्टैंड क्या है? मिलिट्री नंबर 1। अमेरिका को कुछ नहीं दिखाई देता, पॉलिटिकल पार्टीज ये वो कुछ नहीं दिखाई देती। अमेरिका को दिखाई देता है भारतीय सेना। आप इसको दिमाग में खोल करके डाल दीजिए। जितने भी एनालिस्ट बात करते हैं, दे डोंट सी, मैं आपको अमेरिका में रह के बता रहा हूं, भारतीय सेना ही दिखती है उनको, और कुछ नहीं दिखता। किसी से नहीं डरते। वो रशिया से डरते हैं, 6000 न्यूक्लियर वेपन है इसलिए डरते हैं। अमेरिका किसी से डर नहीं है, रशिया से ही सिर्फ डर है। सोच रहे थे यूक्रेन के हाथों उसको टपका देंगे, हुआ नहीं, गलती से। ओके, अब उनको डर है चाइना मिल जाएगा। बट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को कर्व करना कितना आसान काम है। तो एक ही देश बचता है पूरी दुनिया में जिसके पास सेना बड़ी है, और वहां के मूल निवासी वहां पे राज करते हैं, चर्च का कोई शासन नहीं है। अब इस देश में किस तरह गड़बड़ी फैलाई जाए, लोगों को डिवाइड करो, और भारतीय पॉलिटिशियन इतने मूर्ख हैं कि इस गेम में आ जाते हैं पचड़े में। बहुत सारे मीडिया पे इस तरह की पचड़े की बातें होती है। इस समय काम होना चाहिए, सभी भारतीय एक साथ यूनाइट हो सनातन धर्म के आधार पर। चाहे नोबडी इज परफेक्ट, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, थोड़ा बहुत आता है, एंड वी आर ऑल टुगेदर। हम प्रोटेक्ट करें सनातन धर्म। भारतीय सेनाएं सनातन धर्म की रक्षा कर रही है, बाउंड्री की रक्षा नहीं कर रही है। हमारी बाउंड्री तो बहुत बड़ी है। हमारी बाउंड्री में ईरान भी आता है, अफगानिस्तान भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, बर्मा भी आता है, बांग्लादेश में आता है, और हम नेशन स्टेट्स को नहीं मानते। नेपाल भी आता है, तिब्बत भी आता है, भूटान भी आता है। तो मैं भारत की बात कर रहा हूँ, तो मैं महाभारत की बात कर रहा हूँ। भारतवर्ष, भारतवर्ष तो ये एरिया है पूरा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूं, तो हेमवंत, किमपुरुष वर्ष, हरिवर्ष, और ये इलावर्त, और इधर आपका भद्राश्व वर्ष और केतुमाल वर्ष, नाम भी शायद लोगों को पता नहीं होंगे। हम इसकी रक्षा कर रहे हैं, बड़े एरिया की रक्षा कर रहे हैं। ये हमारा इन्फ्लुएंस रीजन है। चीन तो हमें कर देता था, चीन की रक्षा भी भारत करेगा। चीन अपनी रक्षा नहीं कर सकता वेस्ट से, उसको चीन भारत में डिपेंड होना पड़ेगा फ्यूचर में जाके। अभी उछल ले जितना उछलना है उसको, पिट के जब आएगा तो भारत के पास ही आने वाला है। तो एनीवे, ये सब एरिया हमारा है। ये तो मलय सागर है, ये सब मलय द्वीप है, कुछ द्वीप में माना जाता है, इनको कुछ में माना जाता है। ये सब तो भारत के द्वीप है। इन सबको छुपाने के लिए मोदी जी पे आक्रमण किया जाता है, भारत पे आक्रमण किया जाता है। यही है इंटरनेशनल खान मार्केट गैंग का पर्पस। और भारत के मूर्ख लोग दिखता नहीं है उन लोगों को, पॉलिटिशियन। इसीलिए डेमोक्रेसी डाली गई, ताकि गड़बड़ी मचे, उसको इन्फ्लुएंस किया जाए। दुनिया में डेमोक्रेसी बेची, खुद के देश में डेमोक्रेसी नहीं। वहां पे चर्च का आदमी बनेगा प्राइम मिनिस्टर। पूरी दुनिया को सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ाया, खुद के देश में सेक्युलरिज्म नहीं। मतलब राजा कौन बनेगा तब टेस्ट होगा ना, व्हाट इज सेक्युलरिज्म। विवेक रामास्वामी को क्यों नहीं जीतने दिया? क्योंकि वो हिंदू है। दिस इज द रियलिटी। ओके, नाउ अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। अब ये लोग आपको बताते हैं, ठीक है, ये लोग आपको बताते हैं, वेबसाइट पे हूं मैं। अब ये लोग आपको बताते हैं मोदी जी पैराडॉक्स, मोदी पैराडॉक्स, दिस पैराडॉक्स, है ना। ये है फाइनेंशियल टाइम्स का। मैं इनका ही वेबसाइट पे चलता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स, 3080 आर्टिकल लिखे हैं एंटी मोदी, एंटी गवर्नमेंट इंडिया। 3080 आर्टिकल, ओके, पिछले 4-5 साल में। हाँ, ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, खान मार्केट गैंग। और भारत के जो जोकर्स हैं, करण थापड़ और ये सब करके हैं, टोटल नॉनसेंस। फिर आइए चलिए बीबीसी के ऊपर। बीबीसी ब्रिटिश इंटेलिजेंस, न्यूयॉर्क टाइम्स सीआईए। सीआईए ब्रिटिश इंटेलिजेंस इज द सेम थिंग, एंग्लो सैक्सन इंटेलिजेंस एजेंसीज, उसको बुला देना चाहिए AISI,
एंग्लो सैक्सन इंटेलिजेंस एजेंसीज, ASIA, एशिया। मोदी स्नॉर्केल्स इन लक्षद्वीप, ये भी न्यूज बनता है BBC में। मोदी, अरे भाई क्यों भाई? हाउ मेनी आर्टिकल्स यू हैव रिटन मैन? 7,000 against India. When they're targeting Modi or leadership of Modi, which or any leadership which is actually doing little bit, I'm not saying Modi ji is perfect. वो खुद ही नहीं बोलता I'm perfect. Okay? If they're doing 1% also, then also they'll target Hindutva. Because Hindutva word I don't agree with anyone. Because that is, you cannot make a word on another word. Okay? So Sanatan Dharma पे आक्रमण है डायरेक्टली। वेदों पे आक्रमण है। वेदों पे आक्रमण करोगे तो मर जाओगे। 201 पेज लिखे हैं आर्टिकल्स। BBC, ये आपका है BBC। चलिए अमेरिकन पे आते हैं अभी। ओके, 7,541 आर्टिकल ऑन मोदी। अरे भाई तुम अपना देश चलाओ ना, अपने बारे में लिखो, क्योंकि अपने देश के साथ छुपाया हुआ ऐसा कॉलोनी है, वो तो कॉलोनी किसी को बताना ही नहीं है। नेटिव अमेरिकन से इतना ज्यादा लेफ्टिस्ट बनता है CNN, they don't talk about Native American rights, nothing, whitewashed the entire history. Exactly, the word is right, whitewashed, Anglo-Saxon washed, white was washed। इसको छुपाने के लिए मोदी पे आक्रमण हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी पे हो रहे हैं, भारत पे हो रहे हैं, भारत हिंदुओं पे हो रहे हैं बेसिकली, बिकॉज उनको चिढ़ है हिंदू कैसे बन गया। ये नहीं है सिर्फ कि चाय वाला कैसे बन गया, बोले हिंदू कैसे बन गया, हिंदू हमारे सामने खड़ा कैसे हो गया। उनको चाहिए जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, दे हैड नो स्पाइन। उनको भगत सिंह नहीं चाहिए, है ना, हम तो वीर सावरकर नहीं चाहिए, उनको चाहिए अपने पिट्ठू। तो जितने भी भारत में घूमते हैं ना, राहुल गांधी टाइप्स एंड ऑल दिस, वो सब यही इसी कैटेगरी में। आर्टिकल देखिए, इयोलॉजी, अभी ये मैंने दूसरा आर्टिकल है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सेविंग ग्रेस भी है कि फॉक्स न्यूज में ओनली 673 आर्टिकल्स ऑन, ये एंग्लो सैक्सन का माउथ पीस है और थोड़ा ठीक है, क्योंकि ये अलग ही माइंडसेट है। ये माइंडसेट क्या है, देयर इज नोबडी एग्जिस्ट एक्सेप्ट अस एंग्लो सैक्सन, ये, एंड इफ द इंडिया इज फ्रेंडली टू देम, ओके, एंग्लो सैक्सन्स आर हैप्पी। ये बॉस्टन एलीट है, बॉस्टन एलीट, बॉस्टन ब्राह्मण। ओके, तो ये लोग जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, अच्छा बस दिस ओनली फॉक्स न्यूज का वेबसाइट रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, आर्टिकल्स कम है इधर, और एक दो जगह एंटी रहेगा, क्योंकि इसको मतलब है सिर्फ पैसे से और कुछ मतलब नहीं है। इसको चर्च में कोई विश्वास नहीं है। इसका जो मागा क्राउड है, जो बोलता है कि वे क्रिश्चियन जुडे, ये मोस्टली दोज आर कन्वर्ट्स। वो होते हैं मैक्सिकन अमेरिकन होंगे, कैथोलिक वाले होंगे, वो वाले होंगे इनके साथ। ठीक है, जब ये एंग्लो सैक्सन क्राउड है, दिस क्राउड इज लिटिल बिट फ्रेंडली टू इंडियंस, बट यहाँ पे भी गधे हैं, जैसे वो एन कुल्टर है, वो सब टकर कार्लसन यहाँ के लोग का है। सो दिस इज द स्टोरी, सो प्लीज अंडरस्टैंड द स्टोरी, इसको समझिए और सनातन धर्म का पालन करिए, हमारे कोर्सेज में जुड़िए। और मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया आज कि क्या ये पिक्चर है क्या, है ना, शायद आपको समझ में आया होगा। तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे इसका फीडबैक जरूर दीजिए। हमारे कोर्सेज में जुड़िए, everydaychan.com में जाइए, वहाँ पे जुड़िए हमारे कोर्सेज में, हमको बड़ी मात्रा में सपोर्ट करिए, हमारे लिटरेचर फेस्टिवल को फंड करिए। आई नीड ऑल दिस हेल्प फ्रॉम यू, सो प्लीज डू दैट। और अगले शो तक फिर मिलेंगे। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। आई होप यू लाइक द शो।